हेलो हेलो। Yes, sir. गुड यस, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आ गए सब? कहाँ रह गए सब बाकी? क्लास थी क्या कोई और? No, sir. ओके। क्या डिस्कस हुआ था क्लास में कल? यस, व्हाट वी डिस्कस? यस, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो। हाँ, यस यस, आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है आवाज? Yes, sir. लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? हम्म। लैमिनेट का हमें डिस्कस करना है। आई थिंक पहले हमने जो डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिट लैमिना की बात की थी हमने। ठीक है, क्लियर? तो इसमें जो है if it is loaded in some direction, xy direction, okay, and the fiber orientation is given, okay, then how to find out strength component, transform strength component, ये हमने किया था डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फेलर क्राइटेरिया। ठीक है, स्क्रीन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो इसमें जो है दिस इज व्हाट वी टॉक्ड, कि कैसे जो है ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम ये ट्रांसफॉर्म स्ट्रेंथ कंपोनेंट है, ये हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये है एज पर साई हू फेलर क्राइटेरिया, राइट? तो ये हम डिस्कस किए थे। आई स्टिल नीड टू सेंड सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस चैप्टर। ओके, ये सब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, जैसे it is a subject, it is a lamina, okay, having strength f1, f2, f6. So these are in material coordinate system, and we need to determine shear strength fs at 45 degree to the fiber direction using Sahil criteria. Okay, so then if it is subjected to tau s, then what will be sigma 1, sigma 2, and tau 6, right? So that you can insert in Sahil criteria, because Sahil criteria is defined uh, in terms of principal like stress component in principal material coordinate system. Okay, तो उसमें आप पुट करेंगे तो
at failure, this will become equal to fs. Okay, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, right? It can be solved for fs because f1 f2 they will be known, right? So you can determine this. But for higher fiber strength composite, f1 would be very large compared to f2, तो इसको approximate कर सकते हैं आप. f1 would be larger than, so f1 upon f1 square will be negligible, so only this would be there. So fs would be approximately equal to f2. And depending upon positive shear and negative shear, you can determine fs plus would be, because ये ध्यान रखिए यहाँ पे जैसे इस तरह से है, और अगर हम ये लेके चलते हैं यहाँ पे इस तरह से एक एलिमेंट, तो बिकॉज ऑफ दिस shear इट विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड इट वुड बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन. जो लिमिटिंग जो पैरामीटर होगा, लिमिटिंग स्ट्रेंथ होगी, दैट वुड बी अंडर कंप्रेशन इन डायरेक्शन 2. So that's why for positive coordinate, for positive shear stress जो strength होगी वो होगा F2C, right? क्लियर? और इसी तरह से अगर हम नेगेटिव लगाते हैं इसके ऊपर, नेगेटिव shear लगाते हैं, राइट? इफ यू अप्लाई नेगेटिव shear, तो क्या होगा? नेगेटिव shear में इस तरह से होगा, ये नेगेटिव shear में ऐसे लगेगा, राइट? इस तरह से. इसका मतलब क्या होगा? ये जो है आपका इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा और इस डायरेक्शन में कंप्रेशन लगेगा, ठीक है? बिकॉज दिस इज इक्वल टू f2, सो f2 मींस इन दैट केस इट विल बी टेंसाइल. नेगेटिव में ये टेंसाइल होगा. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. यार ओके. सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह से दिया हुआ है. बाईएक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हैं इसके ऊपर, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा नॉट, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट at an angle theta, okay, with the fiber direction. Then again they are required to determine the biaxial strength f naught. Okay, now remember, now we are not talking about strength in individual direction. Okay, now we are talking about strength of a composite lamina, okay, unidirectional lamina under combined loading also. So there would be single strength parameter, okay, that is f naught. So that's why we are saying here biaxial strength. Okay, if it is subjected to sigma x and sigma y along off axis directions, okay. So then from transformation you can determine sigma 1 sigma 2 and tau 6 in principal material coordinate system. And then you can see here, because this is cos square theta plus sin square theta, and sigma naught can be taken out, so finally it will be sigma naught. So sigma 1 sigma 2 would be same as sigma naught. तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको, which can be solved for f naught. But remember, to use this relation we should know f1 f2 etc. But for high strength composite, again, when f1 is very large as compared to f2, so then these are applicable, okay, these are applicable, and then finally f naught can be determined like this, right? So it may be tensile or it may be compressive, okay, two routes would be there. तो ये सब हमने बात किया था. तो इस तरह से ये दो एग्जांपल हैं आपके. So I will be just sending you problems from this chapter also, okay. Now let us go to the next. Elastic behavior of multi-directional laminate will be talking now, okay. What we'll be discussing that overall behavior of a multi-directional laminate is a function of the property and the stacking sequence. Stacking sequence means, like now you have a laminate. Laminate means you have number of lamina, one kept one over the other, like this, okay. Each will be having fibers aligned at some angle, okay.
So maybe theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, and so on. So the overall behavior of a multi-directional laminate is a function of the properties, okay, and stacking sequence of the individual layer. So that you should know. The so-called classical lamination theory that we'll be talking here, okay, the behavior of the laminate within the framework of the following assumptions and restriction. Okay, we will be talking, we will be discussing laminate, behavior of laminate under this theory, classical lamination theory. When we talk about classical lamination theory, you should be familiar with the theory related to beam as well as plate. I think plate you have not done, but beam you have discussed, right? Beam, in one of the class I talked about the different beam theories. We talked about Euler-Bernoulli beam theory, and then we also talked about Timoshenko beam theory, right? Am I right? What is Euler-Bernoulli beam theory? So Can M someone upon, reply that what is? so Hmm. M upon Yes, please. EI equal to d2y upon dx2. Pardon? दोबारा बोलो. M upon EI equal to d2y upon dx2 सर, ये बेंडिंग के लिए था. नहीं, Euler-Bernoulli beam theory ये थोड़ी होती है. कुछ assumptions होती है Euler-Bernoulli beam theory की. अगर आपको ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था. हाँ, राइट, वही. ठीक है ना. उसी को अगर आप एक्सटेंड करते हैं प्लेट के ऊपर, तो यू विल हैव क्लासिकल प्लेट थ्योरी एंड मेंडलिन प्लेट थ्योरी. That is also called first order shear deformation theory, FSDT. Classical plate theory. Classical plate theory is there, and first order shear deformation theory is there. क्लासिकल प्लेट थ्योरी, सीपीटी एंड एफएसडीटी उसको बोलते हैं. ठीक है. जैसे इस क्लासिकल प्लेट थ्योरी जो है, दिस इज ए एक्सटेंशन ऑफ ऑयलर बर्नौली बीम थ्योरी. ऑयलर बर्नौली बीम थ्योरी, इसको ईबीटी भी बोल देते हैं, ईबीबीटी. ओके. उसका एक्सटेंशन अगर प्लेट पे करते हैं तो क्लासिकल प्लेट थ्योरी बनता है. इसी तरह से जो तेमुशेंकु बीम थ्योरी है, ओके, अगर उसको प्लेट पे एक्सटेंड करेंगे तो दैट विल बिकम तेमुशेंकु टीबीटी बोलते हैं उसको, तेमुशेंकु बीम थ्योरी. अगर उसको एक्सटेंड करते हैं प्लेट पे तो दैट बिकम एफएसडीटी. क्योंकि जो लैमिनेट है वो जस्ट लाइक प्लेट ही होता है, तो हम उसी को यूज करेंगे, बट इसमें कुछ डिफरेंस है. ठीक है. तो क्लासिकल इसको नॉट क्लासिकल लेवल, right? So as per this theory we are going to talk about the behavior of the laminate. Okay. अब इसमें assumptions क्या हैं? Assumptions are that each layer of laminate is quasi homogeneous. Quasi का मतलब है कि almost homogeneous. We are not talking about different constituents. We are talking lamina as a whole, and they are orthotropic. Okay, not isotropic. Laminate is thin with its lateral dimension much larger than its thickness. राइट. तो ये जो थिकनेस है, इसको टी दे दीजिए, एच दे दीजिए, जो भी है, एज कंपेयर टू अदर डायमेंशन काफी कम है. राइट. एंड इट इज लोडेड इन इट्स प्लेन ओनली. जो लोड लग रहा है वो इसके प्लेन में ही लग रहा है. देयर इज नो लोड आउट ऑफ प्लेन. राइट. तो इसीलिए जो है देन स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस वी कैन कंसीडर. Plane stress problems, that under what condition we can consider problem to be under plane stress condition. So this is when the thickness is very small as compared to other two dimensions, and it is loaded in its plane. So then we will say that the plane stress condition will hold. So that's why plane stress condition, if it is plane stress in xy, so then this condition will be hold. Okay. The stresses in third direction would be zero. All displacement are small compared with the thickness of the laminate.
like u is the displacement in x direction, v is the displacement in y direction, w is the displacement in z direction. So they are very small. Only we are talking about the magnitude. Okay, displacements are continuous throughout the laminate. Okay, so as such there is no discontinuity in between. That's why displacement can be considered to be continuous. Also, in plane displacement vary linearly through the thickness of the laminate. That is u and v displacement in x, y directions are linear function of z. Right? तो हम इसमें क्या करेंगे that we will talk about a reference plane that is taken in the mid of the laminate. Okay, so at that reference plane, in that reference plane, the in plane displacements are u naught and v naught in plane displacements. And using this in plane displacement, we can find out displacement of any other point away from that reference plane, reference mid plane, and that will be directly proportional to or linear function of z, like how much away from the mid surface it is. So that will depend on that. Okay, and then this assumption you are very much familiar. Straight line normal to the middle surface remains straight and normal to that surface after deformation. Okay, this is what the Euler Bernoulli beam theory also make use of this assumption. Okay, and as a result of this assumption, what will happen is if there is no change, like if there is some some plane like this, it is a mid plane, and this is the normal. Okay, normal to the mid surface, straight line normal to the middle surface remains straight, and this is right angle. After bending also, what will happen is, so this will remain normal, this will remain normal, and as a result of it, so there will be no shear stress, shear strain as such. Okay, so that's why shear stresses, they will be zero, corresponding shear stresses would be zero. Okay, so this is z direction, this is x direction, and this is y direction. So this angle is not changing actually. I am not talking about beam because it is a plate. So it would be not only this angle, it would be this angle also. So like right angle in xz plane and right angle in yz plane. So that's why that will not change. And if there is no change in right angle, that means there will be no shear strain in those planes. So that's why they are zero. Strain displacement and stress strain relations are linear. Okay, so you might have talked the nonlinear stress strain relations and strain displacement relations. Okay, I think you might have talked in theory of elasticity. Is it so? ये कौन से ले आया? अच्छा ये वाला हुआ, ठीक है। वो वाला जो कल आया था वो है ना? आज ही अभी मैं देखा हूँ। ये वाला? नहीं सर ये तो फाइल। अच्छा ये वाला कैडमी सेक्शन से आया, ये तो कल वाला फाइल होगा ना? ठीक। Sorry. Yes. Am I clear? Hello. Yes, sir. आपको पता है कि आपने स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन डिराइव की हैं, राइट? अगर ये लीनियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन एंड स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, okay, so they are assumed here. Also normal distances from the middle surface remain constant. ठीक है, यानी कि ये अगर प्लेट है आपकी, ओके, जो नॉर्मल डिस्टेंस है ये वाली किसी भी पॉइंट की फ्रॉम द मिडल, ये जो नॉर्मल डिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट, दैट रिमेन कांस्टेंट. इसका मतलब है कि देयर इज नो एक्सटेंशन एज सच इन दैट डायरेक्शन. जो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स हैं जेड डायरेक्शन में, ओके, दैट इज नॉट चेंजिंग.
अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेन वुड बी जीरो. Okay, and this implies that the transfer displacement W is independent of the thickness coordinate. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो पॉइंट है, मान लीजिए हम लेके चलते हैं ए बी, so they will be moved such that the distance between A B will not be changed. They will move as a single unit. Okay, so as such there is no displacement, relative displacement between A and B, and that will cause zero strain in that direction. Is it clear? Am I audible? Yes, sir. ओके, यहाँ पे देखिएगा, ये दिखाया है यहाँ पे लैमिनेट सेक्शन बिफोर ए बी सी डी, बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन. ये बिफोर है और आफ्टर दिस है. तो एनी पॉइंट बी, हाउ इट विल बी मूव्ड, इट विल मूव्ड हियर, इट विल मूव्ड यू नॉट अलोंग, द मिडल वी हैव टॉक अबाउट सी पॉइंट. सी पॉइंट जो है यू नॉट मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में. Similarly, this point will move V naught displacement in y direction, and it would move W displacement in z direction. Okay, ये देखिए दिखाया है यहाँ पे W U naught, और इसी तरह से just you can think of in y direction also this point will move, right? And when we talk about B point, so it will move by UB in direction x. Similarly, some displacement in y, and the same displacement W in z. Okay, and during deformation or after deformation, this plane normal cross section will remain plane and normal. Okay, so it is assumed that rotation of the x and y axes are alpha x, which is nothing but dw by dx, that is the slope. राइट, और सिमिलरली वाई एक्सिस का क्या होगा रोटेशन, सो दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी वाई. और यहां से अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट बी निकालें एक्स में, तो ये देखिए यू नोट माइनस दिस डिस्टेंस, ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट थीटा एक्स, सॉरी अल्फा एक्स इंटू जेड बी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम दिस मिड प्लेन. तो यहां से देखिए ये थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए माइनस आएगा. दिस इज यू बी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन. सिमिलरली a displacement of same point in y direction that can be calculated as this, but alpha x and alpha y are known, so you can put it here. Okay, and if you talk about any point, not a b point, we can simply write it as u naught minus z d by dw by dou w by dou x, and similarly this. So it is the displacement field as per classical lamination plate theory, right? And also these relation, once we know displacement, then we can talk about the strain components. और ये आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, यस और नो? थोड़ी प्लास्टिसिटी में आपने किया होगा. Yes, sir. है ना? सो डो बाय डो एक्स, डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो वाई, डो वी बाय डो वाई, एंड दिस आल्सो तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं. तो दीज आर स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस. ओके, तो यहाँ पे जो है नो लीनियर टर्म्स और आती हैं आगे, डो यू बाय डो एक्स के आगे भी और टर्म आती हैं, तो वो हमने नेग्लेक्ट कर दी हैं. अगर हम कंटिन्यूम मैकेनिक्स की बात करें, सो देयर दिस अजम्पशन इज मेड, बट यहाँ पे जो है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं.
इज इट क्लियर? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो डाउट? अरे रिस्पॉन्ड तो किया करो यार। हेलो, नो सर। यस नो कुछ तो बोला करो यार। तो यहाँ पे देखिए जो रेफरेंस प्लेन है, ये वाला रेफरेंस प्लेन है आपका, मिडल वन है ना, मिडल वन, ये रेफरेंस प्लेन है। तो यू नोट, वी नोट एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज ऑल्सो सेम एज डब्ल्यू नॉट, है ना, ये ध्यान रखिए। ये सब जो है मिडल प्लेन के हैं। तो वी हैव डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट अवे फ्रॉम द मिडल सरफेस, okay, in terms of displacement of middle surface plus z coordinate and the rotation, okay, and the rotation, ये है। अगर मान लीजिए आपको ये पता है, देन यू नो, ये जो है डो यू नोट बाय डो एक्स, सो दैट इज द स्टेन in the on the reference plane, stain component on the reference plane, and then these terms they are called curvature, ये कर्वेचर हैं आपके, ठीक है। तो अगर इनको लिखते हैं कापा एक्स, कापा वाई, कापा एक्स वाई और कापा एस, सो फाइनली स्टेन आर रिटन एज द इन प्लेन, सॉरी, मिड प्लेन स्टेन components plus the curvature multiplied by z coordinate. So that way these are the stain components, okay. एंड वंस यू नो, ये आपको पता है, अगर हमें स्टेन कंपोनेंट पता है तो हम यू नो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट द स्टेन और स्टेसिस in material coordinate system, right? Now consider an individual layer K of a multi-directional laminate whose mid plane is at a distance zk. Now let us talk about lamina, ओके, ए पर्टिकुलर लेमिना, ठीक है, जिसका जिसका मिड प्लेन जेड के बार फ्रॉम द लेमिनेट रेफरेंस प्लेन। अब देखिए जैसे आपके पास ये वाला जो है लेमिनेट है, ये मिड प्लेन है, उसके अलावा आपके पास ये लेयर्स हैं, राइट। तो एक पर्टिकुलर लेमिना की बात करें हम, इंडिविजुअल लेयर के, उसका अपना मिड प्लेन होगा, और एक है आपका लेमिनेट का मिड प्लेन। तो इन दोनों के जो जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं जेड के बार, यानी कि जो केथ लेमिना है, केथ लेयर है, उसके मिड प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस मिड प्लेन ऑफ ए द होल लैमिनेट, ठीक है। एंड ये आपको पता है द स्ट्रेस रिलेशन फॉर दिस लेयर रेफर टू द मेटेरियल एक्सिस आर गिवन बाय दिस, क्योंकि ऑर्थोट्रोपिक है और प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शंस के लोंग है, राइट। तो नॉर्मल और शियर में कपलिंग नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज द रिलेशन। बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन टू द लैमिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इसको, आपको पता है अगर एक्स वाई में करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। And after transformation to the laminate coordinate system, what we have is, we have this sigma x, okay, ये यहां से जो है आप निकाल सकते हैं, दिस इज द ट्रांसफॉर्म स्टिफनेस मैट्रिक्स, और ये है स्ट्रेस कंपोनेंट, एंड दिस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट केथ लैमिना, और ये हमें पता है, दिस वी नो, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो इसको आप इंसर्ट कर दीजिए यहाँ पे, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड गामा वजेस, तो आपके पास फाइनली ये आ गया। सो दिस इज
This is, this can be written in short form like this, right? ओके। और इसको अगर प्लॉट करते हैं तो ये देखिएगा, ये पिक्चर सामने आ रही है कि स्ट्रेन आपने देखा कि लीनियरली वेरी कर रहा है along the thickness, but because the properties elastic moduli, they are not, they are not varying linearly over a lamina that is constant. Okay. So is with stress also. Stress भी आपके जो हैं वो आपके जो हैं वेरी करेंगे for lamina, for a lamina itself, and from lamina to lamina, इंडिविजुअल लेमिना आल्सो, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रेन वेरी कर रहा है बट ये कांस्टेंट है। तो सिग्मा बेसिकली इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। ओके, ये होता है मोटा मोटा, राइट। क्लियर। तो यहां से अगर मान Yes, लीजिए sir. ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है बट स्ट्रेन वेरी कर रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेस भी वेरी करेगा। ये यहां से क्लियर है ये पिक्चर। देखिए स्ट्रेन आपका वेरी कर रहा है, अगर लेमिना के ऊपर देखें तो वो भी वेरी कर रहा है, बट इलास्टिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट है। So as a result of stress strain relation, we can show that stress would also vary over a lamina as well as from lamina to lamina, right? अब क्या है कि डिसकंटिन्यूस एंड वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस है लेयर टू लेयर। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि इट इज मोर कन्वीनियंट टू डील विद द इंटीग्रेटेड इफेक्ट ऑफ दीज स्ट्रेसेस। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि हम लेमिना के ऊपर इंटीग्रेट कर दें उसको फॉर ए पर्टिकुलर लेमिना। So then we get the resultant force and moments. Okay, the stress is acting on a layer K of a laminate given by equation 711 can be replaced by resultant forces. अब देखिए कैसे करते हैं, जैसे जैसे ये दिखाया हुआ kth लेमिना के लिए, kth लेमिना के लिए आपको पता है, जस्ट मैं अगर ड्रॉ करूं इसको, kth लेमिना, ये kth लेमिना है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए x डायरेक्शन है तो ये मिड प्लेन है, this is sigma x, right, and it is at a distance z, right। तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पे थिकनेस dz। ओके, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, द फोर्स स्ट्रेस, ओके, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस एंड पर यूनिट लेंथ, लेंथ पर यूनिट लेंथ यानी कि 1 है, यूनिट लेंथ लिया हमने, यूनिट लेंथ, तो ये फोर्स बन गया। और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये थिकनेस है t/2, ये भी है t/2। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आ गया। इसी तरह से y डायरेक्शन में भी कर सकते हैं आप, और सीयर का भी कर सकते हैं, सीयर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और अगर उसको जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा एक्स की वजह से मोमेंट होगा इधर, फोर्स, फोर्स विल बी सिग्मा एक्स इंटू डी जेड इंटू यूनिट लेंथ, right, and force multiplied by distance from the neutral axis and take the integration over the thickness, right, so this would be the moment mx की, kth लेमिना की बात कर रहे हैं। Similarly we can talk about this myk msk, moment because of the shear, moment because of the normal stress along y,
and moment because of normal stress along x. Okay, so these nx, ny, ns, mx, my, ms, so they are called normal forces per unit length, shear forces per unit length, bending moment per unit length, twisting moment per unit length. So this is what you should know. ओके, nx इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं इस तरह से, nx इक्वल टू दिस एंड दिस इज यू नो force and moment resultant. This is force, these are force resultant, these are moment resultant. Okay, and in case of multi-layer laminate, the total force and moment resultant are obtained by summing the effect of all layer. तो ये समेशन आपने यूज कर लिया यहाँ पे, ये है फॉर ए पर्टिकुलर लेयर एंड ये है फॉर ऑल लेयर। तो जो पूरा का पूरा जो लैमिनेट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट मोमेंट होगा, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Doubt, any question? Yes. Any doubt, any question? No, sir. ओके, तो इस तरह से दिखाया गया, देखिएगा यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऊपर है nth लेयर, बीच में kth लेयर, और ये जेड कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, टोटल है h बाई माइनस h बाई 2 से h बाई 2, और जेड नोट, जेड 1, जेड 2, जेड 3 एंड सो ऑन। ओके, जेड के माइनस 1 फॉर kth लेयर, जो अपर वन है वो जेड के है, नीचे वाली है जेड के माइनस 1 है। ओके, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो दिस, अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपने निकाला था यहाँ पे, ये वाला, इसको इंसर्ट कर दीजिए उसके अंदर, उसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए, राइट? यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा in terms of transformed stiffness matrix, strain component of the mid plane, and again here curvature, इस तरह से लिख सकते हैं आप। ओके, अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली, ये सब के सब जो हैं, दे आर नॉट फंक्शन ऑफ जेड, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू लेमिना, लेमिना की फंक्शन है ये, राइट? लेमिना की है, तो इसलिए हम इसको जो है, ये मिड प्लेन का है, सो दे आर नॉट फंक्शन ऑफ यू नो जेड। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पे इसी तरह से किया है ये, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये अलग कर दिया इसमें, ये ओवर द लेमिना है, और ये स्टिफनेस मैट्रिक्स है, ये जेड है, जो स्टेन है वो मिड प्लेन का है, उसका कोई भी इससे जेड या लेमिना से लेना देना नहीं है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, कर्वेचर एंड द स्ट्रेन, ठीक है? तो फाइनली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट बी एंड दिस कर्वेचर। ओके, ये वाला है एन के लिए, इसी तरह से एन एम के लिए लिखेंगे तो बी डी। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिसेस हैं, ए बी टी मैट्रिसेस, so they are, you know, they are called, they are this, they are defined like this, they depend upon, you know, the transformed stiffness matrix and the z coordinate. Okay, here also b also and d also। तो इसको अगर हम करें
अगर मल्टीप्लाई करके करते हैं इसको तो दिस विल बी ए एक्स एक्स, ए एक्स वाई, ए एक्स एस। ठीक है, आई जे के दे आर एक्स वाई एंड एस। So these are the force deformation relation and these are the moment deformation relation. ओके, इनको कंबाइन करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट, एबीडी मैट्रिक्स। ये ध्यान रखिए कि ये जो है सारी की सारी मैट्रिक्स दे आर सिमेट्रिक, दे आर सिमेट्रिक। ओके, अब देखिए द रिलेशंस अबव आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थ्री लैमिनेट स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये इनको बोलते हैं स्टिफनेस, लैमिनेट स्टिफनेस मैट्रिसेस, एबीडी, विच आर फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, ज्योमेट्री का, मेटेरियल प्रॉपर्टी का, स्टैकिंग सीक्वेंस का, राइट। सो दे आर फंक्शन ऑफ दिस and actually they are the average elastic parameter of the multi-layer laminate. Okay, clear? इसको बोलते हैं, these are average elastic parameters of the multi-directional laminate. So aij, this is called extensional stiffness और इन प्लेन लैमिनेट मॉडलिंग। एंड ये क्या करेगा, ये देखिएगा इस रिलेशन में जो ए है, दे आर रिलेटिंग दीज कंपोनेंट टू द स्ट्रेस, सॉरी, रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है, तो रिलेटिंग इन प्लेन लोड्स विद इन प्लेन स्ट्रेन। ठीक है, ये इन प्लेन लोड्स हैं, ये इन प्लेन लोड्स हैं, ये इन प्लेन स्ट्रेन है, राइट। सिमिलरली बीआईजे दे आर कॉल्ड कपलिंग स्टिफनेसेस। कपलिंग का मतलब ये है कि देखिए जैसे जो बी है वो क्या करता है, ये जो है बी, जो कर्वेचर है उसको रिलेट करता है नॉर्मल से। ओके, एंड और अदरवाइज इन प्लेन, यानी कि ये जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, इन प्लेन स्ट्रेन को मोमेंट से रिलेट कर रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाट इन प्लेन एंड फ्लेक्चरल coupling laminate modeling, relating in plane loads to curvature and moments to in plane strain. ठीक है, अगर ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो नहीं है, Bij नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, अगर आप इन प्लेन फोर्सेस लगा रहे हैं तो वो फ्लेक्सरल यानी बेंडिंग भी प्रोड्यूस करेगा और ट्विस्टिंग भी प्रोड्यूस करेगा, राइट। और सिमिलरली इन एडिशन टू इन प्लेन डिफॉर्मेशन मोमेंट प्रोड्यूसेस एक्सटेंशनल, यानी कि मोमेंट लगाएंगे हम तो दैट विल प्रोड्यूस एक्सटेंशनल एंड शियर डिफॉर्मेशन ऑफ द मिडल सरफेस इन एडिशन टू फ्लेक्चरल एंड ट्विस्टिंग डिफॉर्मेशन। ठीक है, डीआईजे दे आर बेंडिंग और फ्लेक्चरल लैमिनेट स्टिफनेसेस, राइट, रिलेटिंग मोमेंट टू द कर्वेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीडी मैट्रिसेस, ABD मैट्रिसेस, राइट। अच्छा, अब इसका इनवर्स भी कर सकते हैं आप, यू जस्ट टेक इनवर्स ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट कापा, इसका इनवर्स लेके करेंगे तो वी विल हैव दिस, राइट। So this inverse we can take, और यहाँ पे ए बी डी क्या है, ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ओके, ये है, ये डिफाइन किया हुआ, दे कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ए बी डी, राइट। ये इस तरह से हैं। So, मतलब आपको पता है जब हम इसका जो स्टिफनेस मैट्रिक्स का इनवर्स करते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस मैट्रिक्स, inverse of stiffness matrix. Since the matrix is ABD and the combined 6x6 stiffness matrix are symmetric, 6x6 compliance matrix and the individual matrices A and D are also symmetric.
However, B and C need not to be symmetric. This B and C they need not to be symmetric, nor equal to each other. ठीक है, ये उल्टा मतलब ये नहीं होगा ऐसा. Okay, so that has been shown here with the example, so that you can just go through this example. Yes, any doubt, any question till now? Yes. No, sir. Hmm? Any question? No, sir. No, sir. Clear, sir. Yes. No question? No, sir. Okay, so then let me stop here. Okay, I will continue with this in the next class. Now let me take the attendance. Yes, Rishikesh, Present, sir. Dinesh, Present, sir. Tendra, Present, sir. Present, sir. Mohammad Faiz, Present, sir. Mohammad Faiz, प्रेजेंट सर सर मैं ऋषिकेश के साथ क्लास कर रहा था हैं? सर मैं ऋषिकेश भाई के साथ क्लास कर रहा हूँ क्या बात, कहाँ पर हो तुम दोनों इकट्ठे? सर हम दोनों क्लास में हैं हैं? प्रेजेंटेशन सर क्लास में सर अभी हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कौन सी क्लास में? एलटी एलटी टू अच्छा, आ गए तुम? हाँ सर आदित्य, विजय, Yes, sir. कृष्णकांत, Yes, sir. राहुल, Yes, sir. सौरभ, सौरभ इज देयर, मोहित, विशाल, रवल हर्ष, रवल हर्ष, वैजयंती, Yes, sir. रविंद्र, Present, sir. उपेंद्र, यस सर प्रतीक्षा, Present, sir.
Arnav, Yes, sir. Udeshna, Present, sir. and Udit. Present, sir. Okay. सर वो मिड सेम की कॉपी चेक हो गई क्या? यार कुछ बाकी हैं अभी. मिड सेम. Okay, I will do it, है ना. एक्चुअल में क्या है कि सब ऐसे ही चल रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम है ना. अगर ओके आपकी सर. क्लासेस चलती तो अभी तक कर देते, बट वी आर आल्सो, आई विल डू इट, है ना. ओके सर. चलो, ओके देन. थैंक यू सर.